In this video lecture, we will be discussing Class 10 TS and AP SERT or any state board textbook. Do this page 4, page 7 and page 8. In that we will discuss find the HCF of the following by using Euclid algorithm for sums. Then express the following as product of prime factors, and to find out HCF and LCM by using prime factorization method 3 sums. So let us start. The first sum is find the HCF of the following by using Euclid algorithm. So HCF by using Euclid algorithm, already I have uploaded some video lectures based on Euclid algorithm. You can go and watch, okay, if you are having any doubt. I told that the smaller number will be considered as B. So B is equals to 50, that is divisor, and bigger number, that is 70, will be considered as dividend. Now Euclid's algorithm should be done by normal division. So 50 will be outside, 70 will be inside. We know 50 ones are 50. So 0 minus 0, 0, 7 minus 5, 2. Now this 50 will become dividend and 20 will become divisor. So we will get 22 is 40, 0 minus 0 is 0, 5 minus 4 is 1. Now this 20 will become dividend and 10 is divisor. So 10 2s are 20, 20 minus 20 is 0. So I'll give you a tip. Whenever you follow Euclid algorithm, you have to continue doing division until you get the remainder as 0. So here, now we should verify this. So for our verification, we have to use Euclid's algorithm, which is dividend is equals to divisor into quotient plus remainder. A is equals to B into Q plus R. So for this first step, what is A? A dividend is 70 is equals to B divisor is 50 into Q quotient is 1 plus R remainder is 20. Then for the next step, dividend is 50, A divisor is 20, B quotient is 2 and remainder is 10. Then for this step, A is 20, B is 10, Q is 2 and remainder is 0. So remember, in the last step, what divisor we get, that will be our HCF. So here our HCF of 50 and 70 is how much? 10. Okay. Similarly, find out the HCF of 96 and 72 by using Euclid algorithm. So what is the bigger number here? Bigger number is 96, so that will be A, and smaller number is 72, that will be B. Divided 96 inside, 72 outside. 72 words are 96, 72 ones are 72, because we know that 72 twos are 144. 144 will be bigger than 96. So do 72 ones are 72. 6 minus 2, 4. 9 minus 7, 2. 24 we have. Now this 72 will become dividend and 24 is our divisor. We know that here we have 2 in units place and here we have 4. We know that 4 threes are 12. It means that see what is 24 threes are by multiplying. 3 fours are 12. 3 twos are 6. 6 plus 1, 7. 24 threes are 72. So 24 threes are 72. So now we got the remainder 0. So stop the division. Okay, we just needed 2 steps here in this. So again now do verification. Okay, so what is the verification? A is equals to BQ plus R by Euclid's algorithm. A here is 96, B here is 72, Q here is 1 and R here is 24. For this step, what is A? 72. What is B? 24. What is Q? 3. And what is R? 0. So what is the divisor we got in the last step? 24. So our divisor here is 24. Since B is equals to 24, HCF of 96 and 72 is how much? 24. So in third bit, the dividend bigger number is 550. So A is equals to 550 and smaller number B is equals to 300. So 300 outside, 550 inside. 300 2s are 600. We know that because 3 2s are 6. So 300 1s are 300 only you should take. 0 minus 0, 0. 5 minus 0, 5. 5 minus 3, 2. 250. Now this 300 will become dividend. 250 watts are 300. 250 ones are 250. Okay.
So 0 minus 0, 0. This will become 2. This will become 10. 10 minus 5 is 50. Now this 250 will become dividend and 50 will become divisor. 50 watts are 250. We know 50 5s are 250. How did I know that 50 5s are 250? Because 5 5s are 25 and 1 0 we have. So 50 5s are 250. So now we got the remainder as 0. So stop the division and do the verification. So verification, A is equals to BQ plus R. A 550, B 300, Q1 R 250. Next, for this also, A 300, B 250, Q1 R 50. For this step, A 250, B 50, Q 5 and R 0. So now since we got the divisor of the last step B as 50, therefore HCF of 550 and 300 is how much? 50. Next, find out the HCF of 1860 and 2015. What is dividend and what is divisor here? What is A and what is B here? Bigger number is 2015. So we will consider A is 2015 here and smaller number B is 1860. So 1860 inside, 2015 outside. 1860 watts are 2015. If you do 1860 2s are 2 zeros are 0. 2 6s are 12. 2 8s are 16. 16 plus 1 is 17. 2 1s are 2. We'll get a bigger number. 3720 is more than 2015. So do 186 1s are 1860 1s are 1860. 5 minus 0 is 5. This will become 1. This will become 10. This will become 9 and this will become 11. 11 minus 6 is 5. 9 minus 8 is 1. We got 155. Now what is the divisor we have? Divisor will divisor is 155 and dividend is 1860. So 1860 here we have. So 155 1s are 155 first will do because 186 से कम क्या है? 155 186 से कम है तो पहले हम लोग लिखेंगे 155 1s are 155. अब यहाँ पर 8 माइनस 5 क्या होता? 3 होता. 6 माइनस 5 क्या होता? 1 होता एंड ये 0 हम लोग नीचे ले लेंगे. ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 155 वॉट्स आर 310. सो 155 वॉट्स आर नंबर लेस देन 310. 155 1s आ तो 155 होता. अब हम लोग देखेंगे 155 2s आ क्या होता. तो 2 5s are 10. 2 5s are 10. 10 plus 1 is 11. 2 1s are 2. 2 plus 1 is 310. तो हम लोग देखें कि 155 2s are 310. तो अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? 155 2s are 310. तो हम लोग को रिमाइंडर आ जाता 310 माइनस 310 0. तो अब हम लोग क्या करेंगे? डिवीजन स्टॉप कर देंगे बिकॉज हम लोग को रिमाइंडर 0 आ गया और लास्ट स्टेप में डिवाइजर क्या आया था हम लोगों को? 155. सो व्हाट डिड वी गेट द HCF ऑफ 1860 एंड 2015? 155. तो पहले वेरिफिकेशन करिए आप लोग. तो वेरिफिकेशन में हम लोग के पास है A इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर. ए क्या है यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में? 2015 है. बी क्या है? 1860 है. क्यू क्या है? 1 है. और आर क्या है? 155 है फर्स्ट स्टेप में. अब सेकेंड स्टेप में ए क्या है? 1860 है. बी क्या है? 155 है. क्यू क्या है? 12 है. और आर क्या है? 0. तो ये है मेरा HCF. सो वी शुड राइट therefore HCF of 1860 and 2015 is how much? 155. ठीक है, this completes our do this of page number 4. Now let us move to do this of page number 7. Do this page number 7. Express 2310 as a product of prime factors. Product of prime factors यानी जब हम लोग prime factors को multiply करते वैसा हम लोगों को 2310 को लिखना है. तो कैसे आएगा हम लोग को? वैसा हम लोग को प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा बिकॉज हम लोग को चाहिए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स. तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसा करते हैं. हम लोग को मालूम यहाँ पर 0 आया. वी कैन डू दिस विद विच टेबल? 2 1s are 2. 2 1s are 2. 3 minus 2 1 1 आता अपने पास 11. तो 2 5s are 10. 11 minus 10 is 1 0. 2 5s are 10. अब यहाँ पर आप लोग 3 से कर सकते या 5 से भी कर सकते. 5 2s are 10. 1 minus 0 is 1 5. 5 3s are 15. 5 1s are 5. अब यहाँ पर आप लोग 3 से कर सकते. 3 7s are 21.
3 माइनस 1 2 1 21 आया, 3 7 ज़ा 21। देखो आप लोग, मैं प्राइम नंबर्स ही यूज़ कर रही हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए। एक टिप है, याद रखिए, आप लोग को हमेशा प्राइम नंबर्स यूज़ करना है प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए। अब यहाँ पर 77 है तो हम लोग 7 यूज़ कर सकते हैं। 7 11 ज़ा 77, 11 1 ज़ा 11। तो मैं 2310 को कैसे एक्सप्रेस कर सकती? 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11। ये है ये क्वेश्चन का मतलब। आई हैव एक्सप्रेस 2310 एज प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ये मेरे प्राइम फैक्टर्स हैं और ये मेरा मल्टीप्लीकेशन है। तो ये हो गया मेरा सम। अब नेक्स्ट सम क्या है? डू दिस, पेज नंबर नेक्स्ट पेज का 8। Find the HCF and LCM of the following given pairs of numbers by prime factorization method. अर्लियर क्या था? HCF फाइंड आउट करना था यूक्लिड्स एल्गोरिथम से। यहाँ पर वो बोल रहा है कि HCF भी फाइंड आउट करो और LCM भी फाइंड आउट करो, बट यहाँ पर कौन सा मेथड यूज़ करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करना है। तो 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन अलग करेंगे हम लोग, 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन अलग करेंगे। दोनों भी 3 के टेबल में जाते। 3 4 ज़ा 12, 3 0 ज़ा 0, 2 2 ज़ा 4, 2 0 ज़ा 2 1 ज़ा 2 0 ज़ा 2 5 ज़ा 5 1 ज़ा। यहाँ पर देखिए 3 3 ज़ा 9, 3 0 ज़ा 3 10 ज़ा 30, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। ठीक है, अब हम लोग 120 को कैसे लिख सकते? 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। 90 कैसे लिख सकते? 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5। अब यहाँ पर एक टिप देती हूँ मैं आप लोगों को। HCF कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग? HCF मतलब ओनली कॉमन, मतलब 120 के प्राइम फैक्टर्स में से और 90 के प्राइम फैक्टर्स में से जो कॉमन रहता उसको बोलते हैं हम लोग HCF। तो यहाँ पर HCF अपना रहेगा ये 3 और ये 3 में से एक 3 मैं कॉमन ले ली बाहर। ठीक है, ये 2 और ये 2 में से एक 2 मैं बाहर ले ली कॉमन। ठीक है, और ये 5 और ये 5 में से एक 5 मैं बाहर ले ली। ये रहता मेरा HCF। तो मैं क्या हिंट दी आप लोगों को यहाँ पर टिप के HCF यानी टेक ओनली कॉमन्स बिटवीन द प्राइम फैक्टर्स। ये दोनों 3 में से एक 3 कॉमन है, ये दोनों 2 में से एक 2 कॉमन है, ये दोनों 5 में से एक 5 कॉमन है। तो सिर्फ कॉमन वाले प्राइम फैक्टर्स हम लोग को लेना है HCF फाइंड आउट करने के लिए। 3 2 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30। तो यहाँ पे HCF क्या हो गया? 30। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे LCM। ठीक है, तो LCM ऑफ 120 एंड 90 फाइंड आउट करना है हम लोग को। यहाँ पे LCM मतलब कॉमन एज वेल एज लेफ्ट ओवर्स। क्या है कॉमन एज वेल एज लेफ्ट ओवर्स का मतलब? कॉमन यानी ये जो हम लोग लिए ना कॉमन, वो पहले ले लो आप लोग। तो कॉमन क्या था? 3 था, एक 2 था और 5 था। कॉमन लिख लिया हम लोग। कॉमन लिखना और LCM में जो बचे हुए हैं वो भी लिखना। ठीक है, हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? LCM फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को कॉमन लेना है और बचे हुए नंबर्स भी लेना है। LCM मतलब वो है। HCF मतलब सिर्फ कॉमन लेंगे आप, लेकिन LCM मतलब कॉमन भी लेंगे और बचे हुए नंबर्स भी लेंगे, कॉमन एज वेल एज लेफ्ट ओवर्स। तो यहाँ पर एक 3 में से 3 कॉमन है, वो लिख दूंगी मैं। एक 2 में से एक 2 कॉमन है, वो लिख दूंगी। एक 5 में से एक 5 कॉमन है, वो लिख दूंगी। फिर बचे हुए क्या है यहाँ पे? 2 2 और 3 है, तो इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख दी। अब मल्टीप्लाई करो ये लोग को LCM फाइंड आउट करने के लिए। 3 2 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, 32 ज़ा 60, 62 ज़ा 120, 123 ज़ा 3 0 ज़ा 0, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 360 आया आपको। तो HCF 30 है और LCM 360 है। और द प्रॉब्लम्स वो भी करेंगे हम लोग, फिर आप लोग को और अच्छे से समझ में आ जाता। और हम लोग को फाइंड आउट करना है HCF और LCM 50 और 60 का। तो 50 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए। 5 1 ज़ा 5, 5 0 ज़ा 0, 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2। तो 50 हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 2। और 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए। 2 3 ज़ा 6, 2 0 ज़ा 0, 3 10 ज़ा 30, 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2। तो 60 हम लोग लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2। अब HCF क्या है हम लोग का? 50 और 60 का ओनली कॉमन्स, ये 2 में से एक 2 कॉमन है, ये 5 में से एक 5 कॉमन है और सिर्फ ये कॉमन थे। ये दोनों में से एक 2 कॉमन, ये दोनों में से एक 5 कॉमन। तो मेरा HCF है 2 5 ज़ा 10। और LCM 50 और 60 का क्या हो सकता? LCM यानी कॉमन एज वेल एज लेफ्ट ओवर्स। कॉमन क्या है यहाँ पे? 2 और 5 कॉमन थे, बचे हुए कौन से हैं? सर्कल को छोड़ के ये बचा हुआ है, ये बचा हुआ है, ये बचा हुआ है। तो इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3। 2 5 ज़ा 10, 10 5 ज़ा 50, 52 ज़ा 100, 100 3 ज़ा 300। फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 37 एंड 49। तो 37 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि 37 एक प्राइम नंबर है, तो 37 1 ज़ा 37। और 49 को तो हम लोग को मालूम है 49 7 के टेबल में जाता,
7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7, तो मैं 37 को लिख सकती 37 इंटू 1 लिख सकती, ठीक है। और हम लोग यहाँ पर 49 को कैसे लिख सकते, 7 इंटू 1 भी लिखेंगे हम लोग। इंटू वन क्यों लिख रहे, बिकॉज हम लोग को मालूम है कि 37 1 ज़ा 37 और 49 में भी 7 7 ज़ा 49 एंड ऑल्सो 49 1 ज़ा 49, यानी 1 कौन से भी टेबल में जाता, कौन से भी टेबल में 1 जाता। तो यहाँ पर कॉमन क्या है दोनों के बीच में, 37 और 49 के बीच में 1 कॉमन है। तो HCF ऑफ 37 एंड 49 इज़ 1 एंड LCM ऑफ 37 एंड 49 इज़ हाउ मच, कॉमन क्या है यहाँ पे 1 कॉमन है, और बचे हुए क्या है यहाँ पे 37 बचा हुआ है और 2 7 बचे हुए हैं, तो ये मेरा LCM है। और फाइंड आउट करिए 37 इंटू 7 क्या होता, 7 7 ज़ा 49, 7 3 ज़ा 21, 21 प्लस 4 हो जाएगा 25, 259 आ गया आप लोग को। अब 259 7 ज़ा करिए, 7 9 ज़ा 63, 7 5 ज़ा 35, 35 प्लस 6 41 होता ना, 35 प्लस 6, 7 9 ज़ा 63, 7 5 ज़ा 35, 35 प्लस 6 41, 7 2 ज़ा 14, 14 प्लस 4 15 16 17 18, 1813 है LCM। तो हम लोग को HCF आया 1 और LCM आया 1813, ठीक है। ऐसा करना था आप लोगों को, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आए होंगे आज की वीडियो। अगर समझ में आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, click that bell icon.